ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਵਾ, ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਵਰ। ਓਕੇ, ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਮ ਪੀਪਲ ਸੇ ਦੈਟ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ that after fulfilling the demands of eatable items, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਈਟੇਬਲ ਆਈਟਮਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਈਕ ਦ ਨੇਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, these people are saying ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਬਚਦਾ ਹੈ should be exported to other countries, ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। Do you agree or disagree? Okay. What I feel like ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਨ। ਦੇ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਿ ਕੁਝ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਵਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਅਗਰੀ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਓਕੇ, ਵਟ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਵਟ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਵਨ। ਓਕੇ, ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਗਰੀ ਹੋ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਹਨ ਦੋ। ਇਸ ਨੂੰ 4 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 5 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸਪੋਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਆਈਡੀਆਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰੀ ਦਾ 2 ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਖਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ। ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰੀ ਦੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਐਸੇ, 3rd ਤੇ 4th ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਨਕਲੂਡ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਲਿੰਪਸ ਆ ਗਈ। This is basically a one way. 4 पैराग्राफ्स ऐसे बन गए। Suppose थोड़ा लाख काम नहीं करता पिया, आइडियाज 3 ने, फिर की करो इंट्रोडक्शन, पैराफ्रेज, थीसिस स्टेटमेंट, बॉडी पैराग्राफ 1, एक आइडिया अग्री दा, बॉडी पैराग्राफ 2, दूसरा आइडिया अग्री दा, बॉडी पैराग्राफ 3, तीसरा आइडिया अग्री दा, ते कंक्लूड कर दो। ਓਕੇ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਗਲਿੰਪਸ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਾ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 250 ਪਲੱਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਆਬਵੀਅਸ ਕੋਈ 10-15 ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 250 ਵਰਡਸ ਵਾ, ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਵਾ, ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਓਕੇ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵਾ। ਓਕੇ, ਵਟ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋਵਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇयर ਆਰ ਚਾਂਸਸ ਕਿ 250 ਪਲੱਸ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਟ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਆਹ बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट सीगी। सपोज स्टेटमेंट की है, बड़ी आसान जी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है गिवा, some people say that mobile phone is beneficial, do you agree or disagree? okay, हुन की कहोगे? एक दे विच फायदे, दूसरे दे विच नुकसान। पहले कहोगे मोबाइल फोन चंगा है, दूसरे दे विच कहोगे मोबाइल फोन माड़ा है। okay, उस दी डिसएडवांटेजेस हैं। I didn't think so that in this way ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। okay, ਜੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਕੇ, ਜੇਕਰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਰਨਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ
जिथे 7 चाहिए होंगे वा उन्होंने राइटिंग दे विच उहदे विच साडे ते कंपल्शन हुंदी है असीं दोवां ही साइड नूं डिस्कस करना है बेसिकली। पर हियर इन द एकेडमिक वन आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज एनी कंपल्शन कि असीं दोवां ही साइड नूं डिस्कस करना है। बेसिकली तुसीं एक साइड नूं डिस्कस करके भी बड़े आराम दे नाल निकल सकते हो। ओके ते तुहाडी जिहड़ी रिक्वायर्ड बैंड स्कोर है बड़े आराम दे नाल तुहानूं मिल सकता है। ओके सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद आवर एसे नाउ। ओके स्टेटमेंट कुछ लोग की हन वो कहते हैं कि जिहड़ियां डिमांड्स वाइटेबल आइटम्स दियां नेटिव सिटीजनस दियां उन्हां नूं पूरा करन तो बाद जिहड़ा वाधू बचिया होया फूड वा वो एक्सपोर्ट कर देना चाहिए, भेज देना चाहिए है दूसरियां कंट्रीज नूं। तुसीं सहमत हो या नहीं सहमत हो? ओके सिंपली पैराफ्रेज करांगे। पैराफ्रेज सम हैंडफुल ऑफ, सम अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ, some few people, people ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ individuals, masses, mortals। okay say ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ponder, consider that after fulfilling okay the demand okay fulfilling the demands okay demands ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ requirements, needs of eatable items, of food, of edible items okay of the native okay of the local citizens ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ netizens। extra food should be exported, should be transported should be sold to other countries, other nations okay other ਹੁਣ अदर ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ to the foreign nations okay foreign nations, states, territories। ਹੁਣ extra food ਨੂੰ left over food should be। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ एक फ्रेमवर्क जिहड़ा है इट इज मोर देन रेडी। जो आप इंट्रोडक्शन से जावांगे थोड़ा जिहा इसनूं चेंज करूंगा। इंट्रोडक्शन जिहड़ी वा एक नहीं कई तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ लिख सकते हैं ਆਪਾਂ। स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ओके हुण इंट्रोडक्शन जिहड़ी है इट इज मोर देन रेडी। हुण मैं शब्द उथों ही लए वा ओके हुण मैं फुलफिलिंग की जगह ते वर्ड मीटिंग लिख देता। मैं कहा फ्यू आप हमेशा ही देखते हैं कि आप हमेशा ही देखते हैं आप उन्होंने लोगों को लभन की कोशिश करते हैं जो सम पीपल होंगे। आप देखिया कि दे आर बेसिकली द एग्रीकल्चरिस्ट्स क्योंकि फूड ये उगाते वा। दे आर बेसिकली द आप कह सकते वा कि द एक्सपर्ट्स दे नो कि भोजन की करना चाहिए है। ज़्यादा समा जेकर भोजन असीं रखांगे खराब हो सकता है ये वो सब कुछ ओके मैं कह कि ये है वा एग्रीकल्चरिस्ट क्लेम दैट आफ्टर मीटिंग the demands of food within the territory ਹੁਣ ਆਪਾਂ within the territory leftover food should be transported to other state। this is basically a one introduction। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ it is claimed by handful of agriculturists that the edible items which are left over after meeting the demands of food inside a country should be transported to other states। ਹੁਣ these are basically the two ways to write down your introduction। सो हुण आपां डिस्कस करते हैं जिस तरह मैं इस ऐसे दे विच मैं अग्री गया हाँ मैं लिखा है कि मैं अग्री हाँ ओके बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजनस। शुरुआत में इस तरह ही बॉडी पैराग्राफ आते हुए मैं टू कमेंट्स पे देयर आर मेनी रीजंस दैट एक्स्ट्रा फूड शुड बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। मैं क्या फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन है फर्स्टली मैं क्या फूड जिहड़ा वा दूसरे देशों नूं दे देना चाहिए वा एथिकल रीजनस करके। मैं क्या मैनी कंट्रीज मैं क्या पीपल जोड़े वा उत्थे
starving, भुखे आ, because they cannot eat, क्योंकि खा नहीं सकते, 2 meal ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਦਿਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਕਟਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ देयरफॉर, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਕਟਮ ਬਣਦੇ ਪਏ ਵਾ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਕੈਨ ਬਾਈ ਇਟ। ਤੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਦੇ ਆਰ ਡਾਈਂਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਰ ਡਾਈਂਗ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ, मैं कुछ नेगेटिव लिखन लगा सीगा, मैं रिजल्टेंटली दी जगह ते वर्ड कंसीक्वेंटली यूज किया। ओके, हुण की सीगा मार्कर, जे मैं इसनूं दोबारा पढ़ा ते बिल्कुल ही पंजाबी दे विच चलना। मैं कहा कि फूड जिहड़ा है दूसरे देशों नूं दे देना चाहिदा है, बहुत सारे कारणों करके। पहला कारण है एथिकल रीजनस करके। मैं कहा बहुत सारे देश वा जिन्हां दे विच लोग भुखे मर रहे हैं, लोग भुखे हैं, मैं कहा वो नहीं खा सकते। मैं कहा 2 मील दिन दे, मैं कहा जिस करके देयरफॉर आ गया। Okay, इस करके क्योंकि कॉज का इफेक्ट पैंदा पिया वा, किसी कारण करके कुछ हुंदा पिया वा। ओके, मैं कहा इस करके वो शिकार हो रहे वा माल न्यूट्रिशन दे, बीमारियां दे, मतलब क्योंकि उन्होंने कोल पैसे नहीं, दे कैन नॉट। मैं कहा कंसीक्वेंटली दे आर डाइंग टू, मर भी रहे वा। मैं कहा इस करके मतलब मैं कहा बट जे इस तरह किया जाए कि फूड दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दिता जाए, वेच दिता जाए सस्ते रेटां ते, मुफ्त दे विच या किसी भी तरीके दे नाल, मैं क्या कि ये जिहड़ी चीज़ है इसनूं अवॉइड कीता। मैं कहते विच आपां एग्जाम्पल देना होवे ते आपां अफ्रीकन कंट्रीज दी, अफ्रीकन नेशनस दी एग्जाम्पल जिहड़ी उसनूं लिख सकते हैं। ओके, मैं हुण गया मेरे दूसरे आइडिया ते। ओके, जेकर मैं अपने दूसरे आइडिया की गल करा, ओके, इट इज मैं कह टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड। हुण मैं इसनूं शुरू करना है, मैं शुरू करूंगा सैकेंडली तो, क्योंकि मैं अपने मार्करस नूं छड्डांगा नहीं, क्योंकि मार्करस जिहड़े वा उन्होंने मैनूं नंबर दिवाने हैं, क्योंकि लैक्सिकल रिसोर्सिस, कोहेरेंस एंड कोहेजन, टास्क रिस्पॉन्स ते ग्रामर दे नंबर मिले, ये कोहेरेंस एंड कोहेजन दा पार्ट। मैं कह सैकेंडली मैं कह वेस्टेज जिहड़ी है भोजन दी उसनूं बचाउण दे लई बहुत सारे मैं कह कंट्रीज वा, मैं कह फूड सरप्लस दे विच है, फूड वाधू है, मैं कह उन्हां नूं रख देवा स्टोरेज हाउसिस, मैं कह या फिर वेयर हाउसिस दे विच, मैं क्या लंबे समय दे लिए। मैं क्या बट हुण मेरा कंट्रास्ट मार्कर है, मैं क्या पर मैं क्या ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस, आप जिस तरह आप भी वेखते हैं अपनी पंजाबी दे विच आपां उन्हां नूं गोदाम कह दिंदे हां। ओके, मैं क्या अनफेवरेबल कंडीशंस करके, जिस तरह टैंपरेचर ज़्यादा हो गया, घट हो गया, मैं क्या कि वो स्पॉइल हो जाता है। इहदे विच आपां उदाहरण दे दित्ती है, मिलियंस ऑफ टन रीसेंट ईयर्स दे विच इसे तरीके दे नाल वेस्ट होया वा साडे देश इंडिया दे विच। सो आ जिहड़ी वेस्टेज हुंदी पई है उसनूं रोकण दे लई भी सानूं एक्सपोर्ट कर देना चाहिए है, ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए है, सेंड कर देना चाहिए है, या बेच दे किसी भी तरीके दे नाल तुसीं। हुण मेरे कोल कंट्रास्ट मार्कर आया। ओके, हुण मैं अगे चलिया द थर्ड आइडिया। मैं कह थर्डली मैं कह इकनॉमिक बेनिफिट्स के लिए भी बेच देना चाहिए है। मैं कहूँ फूड सरप्लस दे विच जेकर आप उसनूं एक्सपोर्ट करते, बट ऑब्वियस साडे कोल कुछ पैसा आवेगा। मैं कह इकनॉमिक बेनिफिट, मैं कह एक्सपोर्ट कर दे, मैं कह जे एक्सपोर्ट किया, मैं कह फार्मिंग ते जिहड़ी एग्रो इंडस्ट्री वा चंगे पैकेजेस मिलणगे उन्हां नूं। मैं कह उन्हां नूं मिनिमम MSP जिहड़ी वो भी मिलेगी, मैं कह शूट अप होवेगी, फ्लरिश करेगी, चंगे प्राइसेस होणगे, रिजल्टेंटली देश की जिहड़ी इकोनॉमी है उस दे विच आउणगे, बूम आवेगा, इट वुड गेट बेटर। हुण मेरे को दिस इज गोइंग टू दिस इज बेसिकली द थर्ड आइडिया। हुण मैं देखा ते मैं 5 पैराग्राफ्स दे नाल अपना ऐसे जिहड़ा है इट आई कैन कंप्लीट दैट। ओके, पर साडे कोल इत्थे होर आइडिया भी हैगा है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट वन। मैं कह लास्टली मैं कह कि सोशल बॉन्डिंग दे लई भी जेकर आप दूसरे देशां नूं भोजन दिंदे हां, बट ऑब्वियस दोवां टैरीटरीज दे विच जिहड़े रिलेशंस होणगे दे वुड गेट बेटर टू। मैं सोशल बॉन्डिंग मैं बिटवीन हुण एक्सचेंज करनगे फूड, हेल्प करनगे, बट ऑब्वियस उन्हां दे जिहड़े रिलेशंस वा स्ट्रोंग होणगे। जेकर कल नूं जिहड़ा फोन जिहड़ा देश एक्सपोर्ट करता पिया, ट्रांसपोर्ट करता पिया, जेकर कल नूं उसनूं किसी चीज़ की जरूरत होए, बट ऑब्वियस दूसरे देश तो जिहड़ी हेल्प है दे वुड बी एबल टू टेक। ओके, सो 4 आइडिया। हुण मैं वन साइडेड जान दा फायदा दसना चाहुंदा हां। इस तरह लिखण दे नाल किते भी कॉन्ट्राडिक्शन का चांस ही नहीं आ।
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चढ़िया साडी रिक्वायरमेंट हैगी वा व्हाट आई फील लाइक जे किसी दी रिक्वायरमेंट इट इज दिस भावें किसी ने जर्नल ट्रेनिंग का भी देना पर जर्नल ट्रेनिंग के लिए आई एम सो सॉरी 7 ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਰ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਦੇ ਲਈ 7 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ नो कॉन्ट्राडिक्शंस ओके जे ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ 250 ਵਰਡਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਮਾਰਕਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ नहीं करते पे बड़े आराम दे नाल in this way matlab you guys can get 7 what else you guys are looking for this is basically the simplest one thank you guys thank you so much